Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Now, students, in an earlier video, it is a part 2 of your third chapter, exogenetic movement or exogenetic process, part 2. फोर्थ चैप्टर 9th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का पार्ट 2 है. सो अर्लियर आपने देखा कि इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर एंड ग्लेशियर. तो इस वीडियो में हम आगे का बाय वर्क ऑफ द विंड एंड लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय द विंड दैट वी विल through the erosion, transportation and deposition that we will see. So first of all, you have learned earlier that the movement of air is called wind and the wind is gaseous agent of erosion. So the erosional transportation, जब erosional मतलब वो सरफेस को, रॉक्स को इरोड करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा और डिपॉजिट करेगा. तो इरोशनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपॉजिशनल वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट. इन डेजर्ट्स मतलब जहाँ रेगिस्तानी इलाका, जहाँ रेत का इलाका हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अवर इन आवर कंट्री थार डेजर्ट, वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात का नॉर्थन गुजरात, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. अब होता क्या है कि एज अ मैकेनिकल वेदरिंग ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल. मैकेनिकल मतलब नेचुरल वेदरिंग जो हवा के जरिए हो रही है. पाउडर्ड रॉक्स एंड सैंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड देयर इज अ हार्डली एनी ऑब्स्टिकल्स इन ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ द विंड. तो वो हवा के जरिए ये सारे जो पार्टिकल्स है, ज़र्रात है, तो वो उड़ के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं. सो इन दिस वे when the speed of the wind reduces, the wind does the work of erosion, transportation and deposition. So wind carries a small sand particles, small pebbles, etc. along with it. This particle cause erosion along the rocks coming in the way due to friction. This lead to the formation of mushroom rocks. So erosional work of wind से क्या हो रहा है? mushroom rocks बन रहा है. Deflations, hollows, yardangs etc. बन रहे हैं. You can see the mushroom rocks erosional work है ना. yardangs भी erosional work है. लेकिन अब depositional work, अब ये हवा तो जो है particles of rocks को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है हवा के जरिए. अब ये डिपॉजिट करेगी तो क्या बनेंगे? जब ये डिपॉजिट करेंगी तो बार चांस बनेंगे. The sand particles that blow with the winds are different shapes and size. Those particles which are very fine are carried over a large distance, while the large ones get transported to shorter distance only. The sand particles get deposited in deserts and semi-arid climates. Desert and semi-arid climates, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, vegetation, plants कम है, trees कम है. As a result, specific landforms are formed. तो अब ये जब अपने साथ सैंड पार्टिकल को लेके दूसरी जगह डिपॉजिट करेंगे तो सैंड ड्यून्स, बारचांस, सिप्स, रिपल मार्क्स, लोएस्ट पेन्स एक्सेट्रा बनेंगे. तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी मशरूम किससे है? मशरूम इज द इरोशनल वर्क ऑफ द विंड. सैंड ड्यून्स, बारचान इज द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द winds. Ripple is also the depositional work of the wind. Now, let's also look at these examples. This is a depositional work. Now work of the sea waves and the landforms. अब sea waves की जो समुद्र की लहर है उसके जरिए कौन सा इरोशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल वर्क हो रहा है और कौन सा लैंडफॉर्म बन रहा है, दैट वी विल सी. इन कोस्टल एरिया sea waves carried out erosional, depositional and transportational work. Winds and tide causes the movement of sea water. As a result, waves come to the coast. Because of their hitting the rocks at the coast, erosional of the rocks occur. So क्या हो रहा है? ये sea waves चल कैसे रही है? Wind and tides, हवा और tides cause the movement of the sea water, है ना. आपने देखा होगा मुंबई में, हमारे नज़दीकी ये मुंबई कोस्ट है, जूहू चौपाटी, नरीमन पॉइंट में आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें जो आती है, तो समुद्र की लहरें वो हवा के जरिए आ रही है और टाइड्स के जरिए आ रही है. अब टाइड क्या है? दैट यू लर्न ऑल अर्लियर. टाइड इज द up and move of the water level in the seas due to the gravitational pull of the sun, moon and earth. In the coastal areas having wide beaches, waves carried out depositional work. तो अब ये depositional work sea waves के जरिए हो रहा है. When the waves break at the coast, they bring them water, transported stones, pebbles and sand particles etc. This lead to the erosion of the coast. तो इससे क्या हो रहा? कोस्ट इरोड हो रही बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द सी वेव्स टू इरोशन ऑकर. अब लैंडफॉर्म्स क्या बन रहा? लैंडफॉर्म्स लाइक वेव कट, प्लेटफॉर्म्स, सी केव्स, सी आर्क्स, वेव कट, सी आर्क्स, सी क्लिप्स एक्सेट्रा आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इरोशनल वर्क ऑफ द वेव्स. अब क्या क्या देखा हमने? वेव कट, प्लेटफॉर्म्स, सी केव्स, सी आर्क्स,
सी केव्स, आपने देखा ये समुद्र की लहरें बार बार उनको हिट कर रही है, तो ये ऐसा हो जा रहा है, राइट। यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस। सी क्लिफ इज ऑल्सो द इरोशनल वर्क, लेकिन लगून जो है डिपोजिशनल वर्क है, वेव कट इज द इरोशनल वर्क। Now next is the depositional work of the sea views. The eroded materials accumulate at the seabed. Because of the tides, they keep on moving towards the coast and away from the coast. Tides के जरिए क्या होता है, पानी करीब कोस्ट के करीब आता है और पीछे जाता है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, दे बिकम अ फाइन, जो भी eroded materials है, because of attrition and hitting each other, deposition of such materials occur at the place where the effect of waves is less. Landform like beaches जो बोलते हैं, आपने सुना होगा, beaches, sandbars, lagoons are formed due to the depositional work of the sea waves. अब देख सकते हो lagoons का, हमारे जो वेस्टर्न केरला का जो हमारा जो केरला कोरोमंडल कोस्ट है, वहाँ पर lagoons बहुत मिलते हैं, एंड lagoons आर वेरी नेचुरल वेजिटेशन के तौर पर, समुद्री नेचुरल वेजिटेशन के तौर पर माना जाता है। So we can see that lagoons is the depositional work of the sea, right? Sea arc. Sandbars also the depositional work of the sea. So beach is also the depositional work of the sea wind or sea wave. So next, so work of groundwater and land. Now the groundwater प्रेजेंट, जैसे कि हम बोरवेल करते हैं, बोरिंग करते हैं या बावड़ी जिसे कहते हैं, दैट इज अवर ग्राउंड वाटर। अब ये ग्राउंड वाटर होता कैसे है, ये ड्यू टू रेनफॉल, हमारी जो बारिश होती है बारिश के मौसम में, ड्यू टू इन द मानसून सीजन, तो जो बारिश का पानी जो हमारे अर्थ सरफेस में एब्सॉर्ब हो जाता है ना, तो दैट इज द ग्राउंड वाटर। द रेन वाटर सिप्स बिलो द अर्थ सरफेस थ्रू द पोरस रॉक्स, तो अर्थ सरफेस में क्रस्ट के नीचे जो पोरस रॉक्स है, तो रॉक्स के जज्ब करता है, एब्सॉर्ब करता है, और क्रैक्स इन द रॉक्स। अब ये वाटर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, दिस वाटर एक्यूमुलेट्स इन द नॉन पोरस लेयर ऑफ द रॉक्स। अब वो अपर सरफेस जो क्रैक्स पे जो है ना, पोरस सरफेस है, पोरस मतलब वो एब्सॉर्ब कर ले रहा है वाटर को, फिर एक वाटर टेबल एक्यूम जमा होते जा रहा है वाटर, कहाँ पर, नॉन पोरस रॉक, जहाँ पे अब वो फर्दर एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो दैट इज द ग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड द दिस एक्यूमुलेटेड वाटर। तो उस सरफेस में जहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट हुआ है उसको ग्राउंड वाटर बोलेंगे। The soluble mineral in the water we know there are a lot of minerals present in the rocks that get dissolved in the groundwater. So this is the erosional work of the groundwater. Now when the groundwater evaporates or the volume of the soluble mineral is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts. अब क्या होता है कि when the soluble mineral is more than the solubility of the groundwater, so deposition of dissolved material starts. तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, as a consequence the landforms like sinkholes, limestones, caves, stalactites and stalagmites are formed. So these are the landforms. So ये depositional work of सी हो रहा है। इरोशनल वर्क से कोई लैंडफॉर्म नहीं बन रहा है ग्राउंड वाटर के, इससे डिपोजिशन से क्या बन रहा है, सिंक होल्स, लाइमस्टोन्स, केव्स, स्टेलसेटाइट्स एंड स्टेलग्माइट्स आर फॉर्म। Thus the groundwater carries out the erosion, transportation and depositional work. You can see the images of sinkholes. It is the depositional work of the groundwater, stalactite and stalagmite and cave. This is under the earth, below the surface of earth के पे हो रहा है, राइट। चलो लास्ट में क्या एक्टिविटी है, रामू हैज टू डिग अ वेल इन हिज फार्म, उसके खेत में उसे एक कुआं खोदाना है, बट ही इज इन डायलेमा, बोरिंग कराना है, कुआं खोदाना है, डायलेमा, वो कंफ्यूज है कि टू विच सीजन ही शुड डिग सो दैट देयर इज अ वाटर सप्लाई फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड व्हाट विल यू सजेस्ट टू रामू, कि उसे रामू कंफ्यूज है कि वो किस सीज़न में उसे बोरिंग या कुआं खुदाना है उसके खेत में, राइट, और कौन सा सीज़न बेहतर रहेगा, तो आप क्या सजेस्ट करोगे। तो देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अभी जैसे मानसून सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है, राइट, तो रेनी सीजन में सजेस्ट नहीं किया जाता है, ज़्यादातर जो गर्मी में सख्त गर्मी रहती है ना, सीवियर हॉट में हमारे अप्रैल मई में, तब ही सजेस्ट किया जाता है कि उस वक्त ही कुआं या बावड़ी खुदाओ,
तब वाटर टेबल ज़्यादा गहराई तक होगा। तो वाटर टेबल क्या होता है, समर सीजन में नीचे पानी नीचे चला जाता है, ज़्यादातर ऊपर का इवेपोरेट हो जाता है और यूज़ में हो जाता है। तो रेनी सीजन में वो अपर, क्योंकि बारिश हमारी जो अपर सरफेस एब्सॉर्ब कर लेती है, तो अपर सरफेस पे तो ऑब्वियसली रेनी सीजन में ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए समर सीजन इज़ द बेस्ट सीजन टू सजेस्ट हिम टू डिग अ वेल। So I think after watching this part 2 and part 1 video, you can able to solve all the questions, right? Thank you for watching this video and share this video more and more students, and more students will be benefited during this lockdown period.